اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ لأہلہا والسلام علی اہلہ واللعنۃ علی اعداء اللہ واعداء آل اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو أصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ لا ریب و عیب بے عیب پروردگار اپنی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید میں اپنے لا ریب و بے عیب بندوں کا تعارف کرا رہا ہے۔ رحمان کے بندوں کی سب سے پہلی علامت نشانی یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، تخاطب کرتے ہیں، تو بے نیازی کے ساتھ سلامتی کی دعا کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ 8 منٹ کا وقت ہے، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ صلوات دروازے بانند بر محمد والے محمد۔ میرا وقت شروع ہوتا ہے اب، 8 منٹ کا ٹائم ہے۔ ویسے ہم لوگ 8 کے تو ماننے والے ہیں نہیں، یا 5 یا 12 یا 14 منٹ کا ٹائم ہونا چاہیے تھا، یہ 8 جو ہے وہ اچھا آپ کا حکم ہے تو۔ پروردگار عالم نے اپنے دن بندوں کا تعارف سورہ فرقان کی اس آیت کریمہ میں کرایا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو تواضع انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے تخاطب کرتے ہیں تو سلامتی کی دعا کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے انکساری، تواضع، نرمی، شفقت، پیار، محبت، اتحاد، یکجہتی، تمام صفات اور اخلاق حسنہ میں پروردگار عالم نے سب سے پہلی جو صفت بتائی ہے وہ تواضع اور انکساری۔ دولت، شہرت، عزت، خطابت، منبر، اقتدار، اختیار، ڈاکٹر کلب صادق صاحب اللہ مقامہ کے پاس غرور اور تکبر اور گھمنڈ کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب ان کے پاس موجود تھے، لیکن اس کے باوجود پوری زندگی ان کی تواضع اور انکساری کا مکمل نمونہ رہے۔ اس لیے کہ جس شاخ میں ثمر ہوتا ہے وہی شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، جو بغیر ثمر اور بے فائدہ شاخ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک صاحب بہت زیادہ حکیم امت کے افکار سے متفق نہیں تھے، لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے، لکھنوی کی وہ شخصیت ہیں، کہ جب حکیم امت اس دنیا سے چلے جائیں گے تب ان کی شخصیت کی عظمت اور قدر کا اندازہ ہوگا کہ جہاں ایک چھٹاک علم بھی نہ ہو اور غرور 100 من ہو، جہاں تقوی اور خلوص 1 گرام بھی نہ ہو، اور گردن جو ہے وہ ذراتے سے زیادہ جو ہے لمبی ہو رہی ہو، تب ان کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی کہ جس کا قد ہمالیہ کی بلندی سے بھی بلند تھا، لیکن جب زمین پر قدم رکھتے تھے تو ادنا طالب علم کی طرح چلتے ہوئے نظر آتے۔ پوری آیت کریمہ میں جو صفات عباد الرحمن بتائے گئے ہیں، حکیم امت اس
सिफत पर अमल करते हुए नजर आते हैं। और आपकी एक खुसूसियत जो बार बार बयान की जाती है, वक्त की पाबंदी। ये वक्त की पाबंदी की उनकी ईजाद नहीं है, ये इस्लाम की पाबंदी का नतीजा है कि उनकी पूरी जिंदगी वक्त की पाबंदी के साए में गुजरी है। इसलिए कि परवरदिगार ने तो तमाम मुसलमानों, खासतौर से मोमिनों को वक्त की पाबंदी ही के लिए एक मरतबा नहीं, हर रोज 5 मरतबा बुलाया अपने दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। तो ये कदम है, रफ्तार और गुफ्तार, ये इंसान के अंदर पाए जाने वाले कमालात और सलाहियत का मजहर होती है। इंसान की तरबियत और परवरिश का इनेकास इसी चाल और रफ्तार और गुफ्तार के जरिए से होता है। यही कदम है, कभी मैदान कारदार की तरफ जाते हैं और यही कदम है कभी मैदान कारदार से बाहर ले आते हैं। यही कदम है कि कभी मस्जिद की तरफ जाते हैं तो ईमान का पता देते हैं, कभी मंदिर की तरफ जाते हैं तो दूसरे मजहब के होने का पता देते हैं। कल्बे सादिक साहब के लिए एक वाकया अर्ज करूँ और जो है अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की मंजिल तक पहुँचाऊँ। जब ये एरिया पूरा यहाँ पर कोई रहता नहीं था, आबादी नहीं थी, तकरीबन 60 साल पहले का यह वाकया। मुझसे जो है वो सरवर हुसैन साहब ने यह नकल किया। उनसे नूर साहब जो वहाँ हाथे में रहते हैं, उनके घर हकीम उम्मत का आना जाना था, दोस्ती थी फैमिली उनके घर से। उनके तालिबे इल्मी के ज़माने का, जब उनकी उम्र तकरीबन 20-22 साल थी, तब का ये वाकया है। ये पूरी इधर कोई आबादी नहीं थी, हु का आलम था, सन्नाटा था। वो एक मरतबा उनके घर आए और ठंडक का ज़माना था, वक्त काफ़ी हो गया, शाम आने को आई और रूमी गेट तक भी यह हालात थे कि लोग जो रात को उधर जाते थे तो लूट लिए जाते थे। तो उन लोगों ने उनके लिए इंतज़ाम ये किया कि कहा कि हम आपके लिए रिक्शा करवा देते हैं, आप पैदल ना जाइए, रिक्शे से जाइए कि अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ दूर जाकर उन्होंने उनको रिक्शा करवाया, वो रिक्शे पर बैठे और ये लोग वहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करते रहे कि जब वो रूमी गेट से पहले जो चौक की तरफ रास्ता जाता है, जब वो वहाँ से वो ढलान क्रॉस करके जब उधर चले जाए तब हम लोग वापस आए। अभी वो कहते हैं हम लोग वहाँ खड़े हुए देख ही रहे थे कि रिक्शा जो है वो ढलान के पास जाए, कह लिया अभी वो उधर गया ही था, हम लोग वापस आना ही चाहते थे, क्या देखा कि रिक्शा जो है खाली आप चला है। जब रिक्शा खाली हमने देखा तो हम लोग सब खड़े हो गए। जब रिक्शा करीब आया और हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम खाली क्यों आ रहे हो, कल्बे सादिक साहब कहाँ गए? कहा कल्बे सादिक साहब जो है वो रिक्शे से उतर गए और पैदल वो जा रहे हैं, मुझे ये कहकर वापस कर दिया कि ठंडक हो रही है, सर्दी हो रही है, सर्दी का वक्त है, तुम वापस चले जाओ, मैं पैदल चला जाऊंगा। 22 साल की उम्र में आईने जवानी के आलम में, जिसे दुनिया दीवानगी का जमाना कहती है, हकीम उम्मत के कौम का दर्द नहीं, एक फर्द का दर्द इतना था कि जो एक रिक्शे वाले की तकलीफ को बर्दाश्त न कर सके, जिसके दिल में एक रिक्शे वाले की रहमत और तकलीफ का इतना दर्द होगा, उसके दिल में पूरी कौम की तकलीफ का कितना दर्द होगा। उसी दर्द को उन्होंने अपने सीने में सुमो कर यूनिटी जैसा एक तोहफा कौम को दिया, एरा जैसा एक अनमोल तोहफा कौम को दिया। जिसके दिल में इतना दूसरों के लिए दर्द हो, उसके दिल में अपने लिए कितना दर्द होगा। इसीलिए तो सरकारे दो आलम ने यह फरमाया है, मन अस्बहा व अमसा वलम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम। जो सुबह और शाम इस आलम में करे कि मुसलमानों की उमूर की उसे कोई फिक्र ना हो, उनके हालत पर उसके दर्द ना हो, उनकी गुर्बत को देखकर उसे अदियत और तकलीफ ना महसूस हो, फरमाया वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं है। और दूसरी हदीस में आपने इरशाद फरमाया, फराइज के बाद जो सबसे बड़ी नेकी है, इदखालुस सुरूर फी कुलूबिल मोमिनीन। फराइज की अंजामदही के बाद सबसे बड़ी नेकी यह है, मोमिनों के दिलों में खुशी को दाखिल करना, सुरूर को दाखिल करना, मोमिनों को खुश करना। हकीम उम्मत यूनिटी और इस पूरी हिंदुस्तान में जगह जगह स्कूल तालिब इल्मों के लिए
तालीम का मरकज कायम करके न जाने कितने मोमिनों की खुशी का सामान फराहम करके चले गए कि जब तक बच्चे पढ़ते रहेंगे उनके वालिदैन खुश होते रहेंगे, जब तक वालिदैन खुश होते रहेंगे तब तक हकीम उम्मत को इसका अजर व सवाब मिलता है। वक्त खत्म हो गया, बाकी ऐसी जामे कि जिसकी पूरी जिंदगी इत्तेहाद इकजहती और इंडिया के नासाजगार हालात को देखते हुए उनका ये इर्तिहाल व इनका इंतकाल उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा मौका था अपने इत्तेहाद इकजहती को दुनिया के सामने पेश करने का, दुनिया के सामने दिखाने का, अपनी यूनिटी अपनी ताकत को दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका था। लेकिन क्या किया जाए कि इसको भी कुछ इसराइल और सऊदिया के अमीरों ने इख्तिलाफ का दरिया बना लिया और जिन्होंने इत्तेहाद और यकजहती पर अमल करते हुए उनकी नमाज जनाजा पढ़ी उनको काफिर भी कहा और निकाह भी तोड़वा दिया, निकाह भी तोड़वा दिया। तो शिया काफिर क्यों है? इनके दुआ करने से नमाज जनाजा पढ़ने से निकाह क्यों टूट जाता है? इसलिए कि जो पैगंबर इस्लाम के ज़माने में अफराद थे शिया, उन्हीं की किताबों में लिखे हुए इनके किरदार को जो है वो पढ़ते हैं और बयान कर देते हैं। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। जो अफराद पैगंबर इस्लाम के साथ रहते थे, जो उनके ज़माने में थे, उन्हीं के किरदार जो उनकी किताबों में लिखे हुए हैं वो बयान कर देते हैं, उसको पढ़ दिया जाता है तो कहा जाता है शिया इसलिए काफिर, शिया इसलिए काफिर हो गए। याद रखिए हमारे यहाँ की किसी बकरी ने जो है कुरान नहीं खाया है। अब मुझे ये नहीं पता कि बकरी ने खाया है या बकरी वाली ने कुरान खाया है, तो भाई बकरी तो नहीं खा सकती है, किसी बकरी वाले ही ने कुरान खाया है कि कुरान में कमी हो गई है। तो तहरीफ के कायल आप हैं, हम नहीं हैं। तो आपके यहाँ जो लिखी हुई है किताबों में, अगर कोई पढ़ने के बाद, बहुत तवज्जो चाहता हूं, जो उनके किरदार लिखे हुए हैं अगर कोई पढ़ने के बाद काफिर हो सकता है तो फिर लिखने वाले तो बदर्जे औला काफिर होंगे। अगर आज के जमाने में कोई पढ़ने वाला अगर काफिर हो सकता है तो जिन्होंने लिखा है फिर वो क्या हुए? तो जिन्होंने लिखा आपकी मंतिक की बुनियाद पर, आपके फतवे की बुनियाद पर, वो बदर्जे औला काफिर हुए। तो जब वो काफिर हुए उनकी नमाज जनाजा आपके आबाओ अजदाद ने पढ़ी, तो अगर आज पढ़ने वाले की नमाज जनाजा पढ़ने से निकाह टूट जाता है तो लिखने वालों के भी नमाज जनाजा पढ़ने से आपके आबाओ अजदाद के भी निकाह टूट गए। तो ये फतवे देने वाले वही हैं जिनकी माओ के निकाह टूट चुके हैं। तो निकाह टूटते रहे, ये ऐसी माओ की नाजायज औलादे दुनिया में आती रही और इसीलिए इनके निकाह टूटते रहे। तो ऐसे फतवे आते हैं कि जहां इत्तेहाद की बात होनी चाहिए थी वहां इख्तिलाफ की बातें हो रही हैं। आज मुल्क के हालात को देखते हुए इससे बेहतर मौका नहीं था, लेकिन क्या किया जाए, यहूदियों के इशारे पर चलने वाले और सऊदिया के रियाल पर और टुकड़ों पर पलने वाले हमेशा इख्तिलाफ के ही बीच डालते रहते हैं। इन्हें कभी इत्तेहाद हज़्म नहीं होता है, इत्तेहाद हज़्म नहीं होता है तो इनके यहाँ इख्तिलाफ की बीमारी पैदा हो जाती है। याद रखिए, बस एक मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। जब खाना हज़्म नहीं होता है तो हैदे की बीमारी हो जाती है, जब इल्म हज़्म नहीं होता है तो तकब्बुर की बीमारी पैदा हो जाती है, जब इबादत हज़्म नहीं होती है तो रियाकारी की बीमारी पैदा हो जाती है, जब दूसरे की तरक्की हज़्म नहीं होती है तो हसद की बीमारी पैदा हो जाती है, जब बात हज़्म नहीं होती है तो ग़ीबत की बीमारी पैदा हो जाती है, जब राज हज़्म नहीं होता है तो चुगलखोरी की बीमारी पैदा हो जाती है, जब मर्जियत हज़्म नहीं होती है तो अखबारियत की बीमारी पैदा हो जाती है, और जब तौहीद हज़्म नहीं होती है तो शिर्क की बीमारी पैदा हो जाती है, जब रिसालत हज़्म नहीं होती है तो कुफ्र की बीमारी पैदा हो जाती है, जब विलायत हज़्म नहीं होती है तो निफाक की बीमारी पैदा हो जाती है, जब अली की मोहब्बत हज़्म नहीं होती है तो जहन्नम में खुजली की बीमारी पैदा हो जाती है, और जिन्हें आज़ादारी हज़्म नहीं होती है उनके यहाँ निकाह के टूटने की बीमारी पैदा हो जाती है।